Hello, good morning students. I hope you are fit and fine at your homes. In previous video, I taught you the poem The Road Not Taken written by Robert Frost, and today I am going to teach you the literary devices of this poem The Road Not Taken. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी वो आपको पढ़ाई थी, और आज मैं आपको इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करने जा रही हूँ. सो लेट्स मूव टू द poem. In the first stanza, the literary device will be rhyming scheme. फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट विल द राइमिंग स्कीम एंड व्हाट इज राइमिंग स्कीम, दैट इज़ वी विल डिस्कस. राइमिंग स्कीम क्या होती है? जो भी हमारी पोएम के लास्ट वर्ड होते हैं यदि उनकी साउंड सेम निकलती है तो वो हमारी राइमिंग स्कीम होती है. ओके, इन द फर्स्ट लाइन, टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. अब यहाँ पर लास्ट वर्ड है वुड, तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे. तो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे तो वो हमारा होगा ए. ओके, इन सेकेंड लाइन, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. लास्ट वर्ड यहाँ पर क्या है? बोथ. तो बोथ हमारा जो है डिफरेंट वर्ड है और जो इसकी साउंड है वो डिफरेंट है. ओके, यहाँ पर क्या था? फर्स्ट में वुड था तो वुड को हमने इंडिकेट किया है ए से. एंड सेकेंड वर्ड है बोथ, ये डिफरेंट है इसलिए यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे बी. एंड इन थर्ड लाइन, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. स्टूड वुड, यहाँ पर सेम साउंड है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर अल्फ़ाबेट ए. एंड इन थर्ड लाइन, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. तो कुड, स्टूड, would have the same sound, that is why we use here alphabet again A. And in the last line, to where it bent in the undergrowth. Undergrowth both have the same sound, that is why we use here alphabet B. Okay, then rhyming scheme will be A B A A B. जो इस स्टैंजा में हमारी राइमिंग स्कीम है वो होगी ए बी ए ए बी. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारी राइमिंग स्कीम क्या होती है. सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फेयर के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट ए. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. क्लेम यहाँ पर डिफरेंट साउंड है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर अगेन बी. एंड इन थर्ड लाइन, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर. वॉन्टेड वेयर, वेयर एंड फेयर हैव द सेम साउंड, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर अल्फ़ाबेट ए. एंड दो एज फोर दैट द पासिंग देयर, देयर, वेयर, fair have the same sound, that is why we use here again alphabet A. And in last line, had warned them really about the same. Same, claim have the same sound, that is why we use here alphabet B. Then rhyming scheme of this stanza will be A B A B. Okay, now we will move to the third stanza of this poem. And both that morning equally lay A. In leaves no step had trodden black. Black different sound है, lay, black अलग है, that is why we use here B. In third line, oh I kept the first for another day. Day, lay, same sound, that is why we use here alphabet A. Yet knowing how way leads on to way. Way, day, lay have the same sound, that is why we use here again A. I doubted if I should ever come back. Back, black have the same sound, that is why we use here again B. Then rhyming scheme will be of this stanza, that is A B A B. I hope you have understood. Now we will move to the last stanza of this poem.
and the rhyming scheme will be I shall be telling this with a sigh. Sigh, a, and in second line somewhere is and is hence. Hence different sound, that is why we use here B. Two roads diverged in a wood and I sigh, same sound, that is why we use here again A. And in the third line, and took the one less traveled by I sigh have the same sound, इसलिए यहाँ पर हम अगेन अल्फ़ाबेट ए का यूज़ करेंगे. एंड इन फोर्थ लाइन एंड लास्ट लाइन, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस difference hence, that is why we use here again alphabet B. Then the rhyming scheme of this stanza will be A B A B. Okay, I hope you have understood the rhyming scheme of this poem. जो हमने डिस्कस करी है अभी, राइमिंग स्कीम डिस्कस करी है इस पोएम की. नाउ वी विल मूव टू द अनदर लिटरेरी डिवाइसेस. ओके, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस विल बी सिम्बोलिज्म. Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning that are different from their literal sense. सिम्बोलिज्म क्या होता है? सिम्बोलिज्म होता है जब हमारी जो पोएम्स हैं उनका लिटरेरी मीनिंग तो कुछ और निकलता है, लेकिन अब उसको सिंबल के थ्रू उसका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि एज अ सिंबल के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं. लिटरेर जो हमारा पोएम का जो भी स्टैंजा दिया हुआ है या लाइन्स दी गई हैं, यदि उसका जो लिटरल मीनिंग है वो डिफरेंट है और सिंबल के थ्रू हम उसे बताना चाहते हैं, वही हमारा सिम्बोलिज्म होता है. इन द पोएम द रोड नॉट टेकन में जो एग्जाम्पल है वो हमारा है टू रोड्स. तो यहाँ पर जो रोड्स हैं वो रोड्स एज अ सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है. जो उसका लिटरल मीनिंग है वो है रोड्स, लेकिन जो हम उसके लिए सिंबल यूज़ किया गया है वो है लाइफ की डिफरेंट चॉइसेस. कि इन आवर लाइफ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस, कि जब भी हम लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की चॉइसेस होती हैं. ओके, तो यहाँ पर एज अ रोड को लिटरल रूप से एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है वो है डिफरेंट चॉइसेस ऑफ आवर लाइफ. आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज सिंबोलिज्म. ओके, इन द नेक्स्ट स्टैंजा इट मीन्स नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विल बी एनाफोरा. Anaphora is a device that features repetition of a word or phrase at the beginning of the successive sentences, phrases or clauses. Anaphora होता है जब हमारा क्या होता है, सेम फ्रेज का सेंटेंस में जो हमारी फ्रेज होती है या जो भी क्लोज होती है उसका रिपीटेशन होता है. जो हमारा रिपीटेशन होता है वर्ड का वो स्टार्टिंग की लाइंस में होता है और वही हमारा एनाफोरा होता है. ओके, इन द स्टैंजा जो भी हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे. टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो in these lines जो हमारा एंड वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और जो रिपीटेशन है वो कब है, वो बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव सेंटेंस में. जो भी हमारा सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं. और जो ये वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही रिपीट होना चाहिए इन द लिटरेरी टर्म्स ऑफ एनाफोरा. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. एनाफोरा में जो हमारी ये लिटरेरी डिवाइस है इसमें जो भी हमारे वर्ड का या फ्रेज का या क्लोज का रिपीटेशन होता है वो स्टार्टिंग में होता है. ओके,
Next literary device will be anaphora. Anaphora is a device that features repetition of a word or phrase at the beginning of the successive sentences, phrases or clauses. एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस वो होती है जिसमें जो भी कोई वर्ड या फ्रेज होता है उसका रिपीटेशन होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो भी सेंटेंस होता है तो उसमें किसी भी वर्ड का और फ्रेज का रिपीटेशन ही एनाफोरा कहलाता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट वन, 2 roads diverged in a yellow wood. Okay, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. तो here and word is repeating again and again in the starting of the line. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो and word है वो repeat हो रहा है, बार बार repeat हो रहा है and और ये स्टार्टिंग में हो रहा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो रहा है. दैट इज़ वाई हेयर इज एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विल बी alliteration. What is alliteration? In alliteration is a device that features repetition of a consonant sound. जब लाइंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर हमारी डिवाइस होती है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज़ अ डिवाइस दैट फीचर रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. क्या होते हैं हमारे 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और रिमेनिंग क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. कॉन्सोनेंट, लेकिन अब यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, वर्ड नहीं देखेंगे, उनकी साउंड देखते हैं. ओके, लेट्स सी एग्जांपल. इन द लास्ट लाइन, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर. वांटेड, यहाँ पर जो है वह साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, वांटेड एंड वेयर, वांटेड एंड वेयर. दैट इज वाई हियर इज एलिट्रेशन. ओके, नाउ then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there. तो here is a repetition of though and that, यानी कि though और that का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है और ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है. तो though, that is why here is alliteration. And in the third line, okay, sorry, in the third line, oh I kept the first and four. फर्स्ट यहाँ पर एफ वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है और एफ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है एंड अगेन एफ. दैट इज़ वाई हेयर इज एलिट्रेशन. जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर हमारी लिटरेरी डिवाइस जो होती है वो एलिट्रेशन होती है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस. रिपीटेशन इज़ द रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. जब किसी भी वर्ड का और फ्रेज का रिपीटेशन होता है तो वो हमारा रिपीटेशन कहलाता है. ओके, और ये जो हमारी फ्रेज या वर्ड होता है वो कहीं पर भी हो जाता है, सेंटेंस के मिड में और एंड में कहीं पर भी हो सकता है. इन द पोएम लेट्स सी द एग्जांपल. 2 roads diverged in a yellow wood. ओके, 2 roads diverged in a yellow wood. यहाँ पर हमारी फ्रेज है. ओके, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट here in the next stanza 2 roads diverged in a wood. ओके, यहाँ पर जो है येलो मिसिंग है. जो फर्स्ट लाइन थी उसमें येलो भी लिखा हुआ था, यहाँ पर येलो नहीं है बट वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है. 2 roads diverged in a wood. here that is why here is a repetition literary device. I hope you have understood the literary devices of this poem.